ہیں ان کے اوپر یہ سب سے بڑا یہ ڈیبیٹ رجیم چینج کی کہ اس کا رجیم چینج اور اس کا فال آؤٹ، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے پہلے تو سارے اسپیکرز کا جو انہوں نے تبصرے کیے میں صرف اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سب نے مختصر پہلوؤں کے اوپر بات کی جو رجیم چینج کے ایفیکٹس آئے ہیں ملک میں۔ عمران ریاض نے بات کی کہ جس طرح میڈیا کے اوپر اب کسی بھی جمہوریت میں ایسا پریشر نہیں ڈالا گیا جو اس دور میں میڈیا کے اوپر پریشر ہے، اور اس کے بعد شعیب آپ نے شروع میں ہی جو پرابلمز بتا دیے کہ ہمیں ڈفرینٹ ایریاز میں کس طرح کے پرابلمز ہیں۔ دیکھیں، میں جو سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا، اور اگر آپ اس کی پیچھے چلے جائیں پاکستان کے بننے کے، تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ آزادی چاہتے تھے لوگ۔ علامہ اقبال کی جو ساری کوشش تھی کہ غلامی سے لوگوں کو آزاد کرے، ذہنی غلامی سے۔ قائد اعظم کا یہ کہا جاتا تھا کہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا، اور ان کی کوشش ساری جو سٹرگل تھی وہ یہ تھی کہ ہم اگر ہندوستان میں رہ گئے تو ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ اور جو قائد اعظم کی خاص طور پہ ہمیں ان کی بریلینس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ وہ تب یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ ایک دن نریندر موڈی کا ہندوستان بنے گا جدھر مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پاکستان بنا تھا۔ تو یہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم ایک غلامی سے نکل کے دوسری غلامی میں آ جائیں۔ اور ہمیں یہ جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ آزادی کا نعرہ ہے کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، تو یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان کا حصہ بن جاتا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ انسان کسی کی غلامی کرے اور قبول کرے۔ جو میری بڑی کوشش رہی، بلکہ میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بھی بنائی، اور اس کی کوشش کیا تھی کہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ اگر یہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا جس کے فاؤنڈنگ فادرز علامہ اقبال اور قائد اعظم تھے، تو کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا۔ اور پھر جب ہم پاکستان کی جو آبجیکٹیو ریزولوشن جو فاؤنڈنگ فادرز نے بنائی تھی، تو اسلامی فلاحی ریاست وہ بیس تھی مدینہ کی ریاست پہ۔ اور وہ کیوں نہیں ہمارے بچوں کو پتا کہ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایک دنیا کی تاریخ کا بڑا انقلاب آیا تھا اور تاریخ کا حصہ ہے۔ ہمارے بچوں کو کیوں نہیں سمجھ کہ وہ جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، تو وہ جو مدینہ کی ریاست تھی ان کی سنت تھی، اور وہ کی پرنسپلز پہ بنی تھی۔ اور جو اس کا سب سے بڑا پرنسپل تھا جو شمشاد صاحب آپ نے بتایا، وہ رول آف لا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جو چھوٹے چور کو جیل میں ڈالتی تھی لیکن طاقتور آدمی کو NRO دے دیتی تھی، یعنی اس کو امیونٹی دے دیتی تھی۔ یہ اگر آج آپ سٹڈی کریں ڈیولپنگ ورلڈ، تو ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے۔ وہ طاقتور کو نہیں پکڑ سکتے، وہ صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ جو فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے جو یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے ایک فیکٹ فائنڈنگ پینل بنائی کہ کیوں ڈیولپنگ ورلڈ غریب ہوتی جا رہی ہے اور امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں، تو ایک جو مین چیز کیا آئی سامنے کہ ہر سال 1700 ارب ڈالر غریب ملکوں سے چوری ہو کے، منی لانڈر ہو کے امیر ملکوں میں یا آف شور اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی پینل کے مطابق
7,000 अरब डॉलर पड़ा हुआ है चोरी का गरीब मुल्कों का ऑफशोर अकाउंट्स में, टैक्स हेवंस में। तो जो ये ट्रांसफर ऑफ वेल्थ हर साल होती है, गरीब गरीब हो जाता है, अमीर अमीर हो जाता है, वो क्यों होती है? क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सारों कानून में एक बराबर। तो जब ताकतवर को आप छूट देते रहते हैं NRO 1 या NRO 2, वो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमारे नबी ने कह दिया था कि ये तबाह हो जाएंगी कौमें, और वो तबाही आप एक एक मुल्क देख लें, वो अगर वो तबाह हो रहा है तो उसकी बेसिस पे चले जाए। तो ये जो हमारे सामने लेबनान, बेरूत, सारे मिडल ईस्ट का एक वक्त में दुबई समझा जाता था, सारी दुनिया छुट्टी बनाने बेरूत जाती थी। आज वो लेबनान 70% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। क्या वजह है उसकी? सारे लोग सड़कों पे, करप्शन है, ताकतवर की करप्शन, वो नहीं पकड़ सकते उसको। तो नंबर 1 गाइडिंग प्रिंसिपल, मैं सिर्फ ये पहले कह दूं क्योंकि मैं इसी के ऊपर आता हूं अभी, जो यहां हुआ है। नंबर 1 रूल ऑफ लॉ, कोई कानून के ऊपर नहीं। नंबर 2 इंसानियत, फलाई रियासत, वो पहली दुनिया की फलाई रियासत बनी थी। और तीसरी चीज जो थी खुददारी। कोई जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, आप किसी के सामने नहीं झुकते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 637 और 638 में 627 और 628 में एक खत लिखते हैं रोमन एम्परर को, बेजेंटाइन एम्परर को, दूसरा लिखते हैं वो जो पर्शियन एम्परर था। और वहां ये नहीं लिखते कि हम अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। वो कहते हैं मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अपनी बेहतरी के लिए तुम मेरा पैगाम अगर इसके ऊपर अमल करोगे, ये आपकी बेहतरी है। और ये तारीख का हिस्सा है कि 10 साल के बाद कोई सोच तस्वर भी नहीं तब कर सकता था। 10 साल के बाद वो दोनों इनके सामने एम्पायर्स घुटने टेक देते। ह्यूमन हिस्ट्री है ये। तो वो जो अल्लाह हमें हुक्म करता है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, वो हमारी बेहतरी के लिए है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ था, मैं जब 18 साल की उम्र में पहली दफ़ा इंग्लैंड गया तो ये मैंने देखा इंग्लैंड के अंदर पहली दफ़ा मैंने फलाई रियासत देखी कि एक आदमी गरीब आदमी है, उसके पास पैसे नहीं है, वो नेशनल हेल्थ सर्विस में जाके मुफ्त इलाज होता था। मैं जब अपनी वालदा को लेके गया, जब उनको कैंसर थी, तो वहाँ मैंने अजीब सीन देखा कि मैं पैसे दे रहा था अपनी वालदा के इलाज में, साथ वाले बिस्तरे पे उनके एक नेशनल हेल्थ सर्विस की एक खातून थी, मुफ्त इलाज हो रहा था उसका, और नर्सेज और डॉक्टर कोई फर्क नहीं कर रहे थे उन दोनों के बीच में। जो हमने बेसिस शौकत खाना में रखा कि वहाँ अल्लाह का करम है, हमने भी यही फैसला किया कि जो भी डॉक्टर्स को नहीं पता होना चाहिए कि कौन पैसे दे रहा है कौन नहीं दे रहा, ताकि दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दे। तो वहाँ देखा मैंने स्कूल्स के अंदर, ग्रामर स्कूल, मुफ्त तालीम मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन, उनके प्राइम मिनिस्टर्स निकले हुए ग्रामर स्कूल से। बेरोजगार हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते थे, अदालत में जाए तो लीगल एड मिलती थी, गरीब को प्रोटेक्शन थी, फलाई रियासत थी। और रूल ऑफ लॉ आपके सामने अभी हुआ है कि जब हम 1100 अरब रुपए की छूट दे रहे हैं बड़े बड़े डाकुओं को, बरतानिया के अंदर नो कॉन्फिडेंस हो रहा है बोरिस जॉनसन पे। किस चीज पे? कि जी वो उसने कोरोना के दौरान उसने जाके बाहर एक लोगों ने गैदरिंग कर दी और वो इजाजत नहीं थी उसकी। यानी प्राइम मिनिस्टर को वो नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि वो उसने कानून तोड़ा, कोई डाका नहीं मारा, सिर्फ उसने वो कानून तोड़ दिया कि उसने लोगों को कहा था कि आइसोलेट करना, और उन्होंने नहीं किया, गैदरिंग कर दी। नो कॉन्फिडेंस मोशन अपनी पार्टी ने पास किया। सो जो रूल ऑफ लॉ और जो इंसानियत वहां मैंने देखी, हमारे मुल्क तो बना ही था हमारे तो जो फाउंडिंग फादर्स की मिशन स्टेटमेंट है, हम तो उसके आसपास भी नहीं कभी आए। हमारे तो ये 2 तबके चल रहे थे, रूलिंग क्लास, सारी अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ में, छोटे से तबके, बाकी लोगों बेचारों के पास बुनियादी जरूरियात नहीं है। तो अब आ जाए इसके ऊपर, मैं सिर्फ अब रिजीम चेंज की बात करना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो मुझे जब मैंने वो साइफर देखा
जब तो पहले मैंने 3 दफ़ा पढ़ा कि ये वाकई में ये सच देख रहा हूँ। आपने शमशाद साहब आपने कहा कि पता नहीं उसमें नहीं, आपने नहीं कहा। जी आपने कहा जल साहब। मैं आपको बताऊं कि मैंने जब पहली दफ़ा पढ़ा कि अगर तुमने नाम लेके, हमने सुना है कि इमरान खान अकेला का फैसला था रूस जाने का, ये ज़रा सुने। हमने सुना था कि ये इमरान खान का अकेला फैसला था, और वो एम्बेसडर कह रहे नहीं उसका नहीं फैसला था, ये इंस्टीट्यूशनल फैसला था। वो आगे से ये बता रहा है, और वो फिर आगे से कहता है कि अगर तुमने, अच्छा अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल नहीं हुई असेंबली में, वो 1 दिन के बाद हुई है। वो कह रहा है कि अगर तुमने इमरान खान को ना इसमें नो कॉन्फिडेंस के जरिए इसको फारग ना किया तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान के लिए। और फिर कहता है और अगर कामयाब हो गई तो ऑल विल बी फॉरगिवन, माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान। मेरी पहली इंस्टिंक्ट, पहले तो मैंने 3-4 दफा पढ़ा कि ये मैं वाकई सही पढ़ रहा हूं। पहला जो मैं सोच रहा था कि कोई इस तरह की 22 करोड़ लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदगी कोई ऐसी तौहीन कर सकता है? किसी की जुर्रत है कि इस तरह का खत किसी को लिख दे? और हमें बाद में किसी ने कहा जी वो या तो ऐसे तो आते रहते हैं मरासले। कभी किसी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मुल्क में इस तरह का मुरासला नहीं आ सकता। ये नामुमकिन है कि किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कोई आगे कहे जी इसको हटा दो। तो ये कितनी तौहीन है एक मुल्क की। यानी किस तरह का एक आम ऑफिसर कह रहा है कि जी इसको प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। तो मुझे दूसरी हैरत हुई कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, वो एम्बेसडर है, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे है, वो किसको हुक्म दे रहा है कि इसको हटा दो प्राइम मिनिस्टर को? और उसके बाद जरा तमाशा देखें। एकदम उसके बाद जनाब अगले दिन वो आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, और एकदम हमारे इत्तेहादी और लोटों को आता है कि जो हो महंगाई बहुत हो गई, ये तो गवर्नमेंट नहीं सही चल रही। अब ये सुने जरा, पहले 2 साल हमारा पहला इतना मुश्किल साल था। मुश्किल साल इसलिए था कि हमारे पास 6 हफ्ते के तो रिजर्व्स थे, हम पेमेंट्स ही नहीं कर रहे थे अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की। हम लोगों को भी ना बता सकें कि वो रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपए ना गिर जाए। रिजर्व्स हमारे नीचे थे, भागे फिरे कभी इधर अपने 3, मैं वैसे इनका शुक्र भी करता हूँ, ये जो हमारे 3 दोस्त थे जिन्होंने हमें पैसे दिए, नहीं तो हमारे पास तो बैंकक्रप्ट थे हम। पहले तो उधर से मुश्किल से निकले और बड़ा मुश्किल वक्त था, और IMF ने फिर कंडीशंस लगाई हमारे पर, सख्ती की, डिमांड स्क्वीज की, बेरोजगारी थी, चीज़ें उन्होंने, कीमतें हमने बढ़ानी पड़ी, रुपया गिरा। जब रुपया गिरा बाहर से सारी इंपोर्ट्स महंगी हुई, तो मुश्किल वक्त था। ऊपर से कोरोना आ गया अगले साल, वो फिर स्क्वीज किया। तो हम 2 साल तो बड़े मुश्किल थे हमारे लिए। और शुक्र करें कि मैंने लॉकडाउन नहीं लगा दिया, जो सारी ऑपोजिशन बार बार कह रही थी कि लॉकडाउन लगाओ। लॉकडाउन कहते तो वैसे ही हमारा बेड़ा गर्क हो गया था। जिस दुनिया में मुल्क में लॉकडाउन लगाया, जरा देखे तो सही, उनकी इकोनॉमीज तो उजड़ गई। हम पहले ही बुरी हालात में थे। सारों ने 3 महीने मैंने सारा प्रेशर बर्दाश्त किया, नहीं लगाया लॉकडाउन पूरी तरह, और अपनी इकॉनमी बचाई। यही IMF थी। इनसे मैंने बात करके कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए कंसेशंस ली, क्योंकि रोजगार तो उन्होंने देना था। इन्हीं के साथ हमने बात करके अपने थोड़े टैक्स कम करवाए, हमने इंसेंटिव्स दिए। तो 2 साल तो बड़े मुश्किल थे, लेकिन तीसरा और चौथा साल, 17 साल के बाद, अब जरा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देख लें, 17 साल के बाद सबसे बेहतर 2, जिसमें हमारी माशत ऊपर गई, जिसमें हमारी वेल्थ क्रिएशन हुई और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहा था। मतलब कि सारे सेक्टर्स ग्रो कर रहे थे।